نیوز میں ہوئی رفتار سے صاحب جان چکے ہیں۔ آغاز میں آپ کو بتائیں کہ حکومت پنجاب کے برپک اقدامات کا اثر رمضان مبارک میں مہنگائی کا گراف زمین بوس ہوا ہے۔ اشیاء ضروریات کے نرخوں میں 50% سے زائد کمی ہوئی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے عوام سے گرہ فروشوں کا معاشی بائیکاٹ کرنے کی اپیل کر دی ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس اشیاء خورونوش کے نرخوں کا جائزہ لیا۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ رمضان المبارک میں مہنگائی کا گراف زمیں بوس ہو گیا۔ اشیاء ضروریہ کے نرخوں میں 50% سے زائد کمی ہوئی۔ پنجاب میں سبزیاں پھل سستے، سپلائی بھی پوری، مارکیٹ مافیاز کا بھی مکمل صفایا۔ رمضان نگہبان بازاروں میں ہجوم، 5 روز کے دوران 35 لاکھ سے زائد خریداروں کی آمد۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ رمضان بازاروں سے 21 لاکھ ٹن اشیاء کی فراہمی عوام کے 3 کروڑ روپے بچا لیے۔ رمضان بازاروں میں سینئر سٹیزن کیمپ قائم، 10,000 بزرگ شہریوں نے خریداری کی۔ رمضان بازاروں میں اشیاء خورونوش کے نرخوں کی مانیٹرنگ کا فل پروف انتظام تھا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اجلاس میں اشیاء کے نرخوں میں واضح کمی پر پوری ٹیم کو شاباش دی۔ ان کا کہنا تھا کہ ریٹ لسٹ نہیں تو خریداری نہیں، عوام گراں فروشوں کا معاشی بائیکاٹ کریں۔ محمد حسن رضا، لاہور نیوز۔ حکومت کی جانب سے ماہ سیام میں عوام کے لیے ریلیف دیے جانے لگا ہے۔ رمضان بازاروں میں مارکیٹ کی نسبت 10% تک رعایت دی جا رہی ہے۔ شہری اشیاء ضروریات کی خریداری کے لیے رمضان بازار کا رخ کرنے لگے ہیں۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ پنجاب حکومت نے رمضان بازار قائم کر کے عوام کو بڑا ریلیف دے دیا۔ رمضان بازاروں میں 16 بنیادی اشیاء ضروریہ سرکاری نرخوں سے بھی کم قیمت پر دستیاب ہیں۔ ہربنس پورہ رمضان بازار میں آٹا 905 روپے کے بجائے 850 روپے میں دیا جا رہا ہے۔ چینی 140 روپے فی کلو دستیاب ہے۔ کھجور 485 روپے، انڈے 226 روپے اور چکن 431 روپے کلو میں فروخت ہو رہے ہیں۔ سبزیوں میں آلو 20 کے بجائے 18 روپے کلو، پیاز 58 کے بجائے 56 روپے کلو اور ٹماٹر 80 کے بجائے 78 روپے کلو میں مل رہا ہے کے بجائے 140 روپے اور خربوزہ 240 کے بجائے 235 روپے کلو میں دستیاب ہے۔ بیسن 250 کے بجائے 248 روپے، دال چنا 240 کے بجائے 238 روپے میں دستیاب ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ رمضان بازار میں عوام کو ریلیف دیا جا رہا ہے۔ ابھی مرغی خریدی ہے، ہم افطاری کا سامان لینے آئے ہیں، تو ابھی تو مرغی خریدی ہے، باقی سامان لینا ہے، ہم نے خریدنا ہے اور آتے رہتے ہیں۔ ہم جیسے رمضان شروع ہوئے ہم آتے رہتے ہیں۔ میں یہاں رمضان بازار میں اپنی سبزیاں اور کچھ چیزیں خریدنے کے لیے آیا ہوں۔ سبزیوں کو ریٹ مناسب ہیں، زیادہ نہیں ہیں اور دکاندار بھی خوش اخلاق ہیں، اخلاق سے پیش آتے ہیں۔ چیزیں جو ہے مناسب ریٹ کے اوپر ہیں، مطلب چینی کا ریٹ مناسب ہے، یہاں پہ کچھ دالوں کا ریٹ مناسب ہے۔ پنجاب حکومت کی جانب سے کافی اچھے اقدامات ہیں، تو اپریشیٹ کرنا چاہیے جو ہے پنجاب حکومت کو۔ رمضان بازاروں کا مقصد عوام کو معیاری اور سستی اشیاء خورونوش ایک ہی جگہ مہیا کرنا ہے۔ اور ناظرین، ماہ مقدس کے دوران پھیپھڑیوں کی تیاری میں تیزی آ گئی ہے۔ بازاروں میں میٹھے پکوان کی طلب بڑھنے کے ساتھ پھیونیوں کی خریداری بھی عروج پر ہے۔ شہری افطاری کے لیے بھی عزیز و اقارب کو پھیونیوں کا میٹھا تحفہ دے رہے ہیں۔ رپورٹ کریں گے سامیہ سعید۔ رمضان المبارک کے آغاز کے ساتھ ہی بازاروں میں میٹھے پکوانوں کی طلب بڑھ گئی۔ دکاندار عید کے لیے خصوصی طور پر پھیونیوں کے ایڈوانس آرڈر مکمل کرنے میں مصروف۔ شہری نہ صرف سحری اور افطاری بلکہ عید کے موقع پر میٹھے پکوان کا تحفہ رشتہ داروں کو دینے کے لیے بھی پھیونیاں خرید رہے ہیں۔ دکانداروں کا کہنا ہے پھیونیوں کی تیاری میں میدا اور گھی، الائچی اور خشک میوہ جات کا بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ہر کوئی شوق سے پھیونیوں کا استعمال کرتا ہے۔ عید کے لیے میٹھے کے طور پر بھی پھیونیوں کا تحفہ بھجوایا جاتا ہے۔ عید والے دن ہم اپنی بیٹیوں کو عید دینے جاتے ہیں، ہم لے کے جاتے ہیں، اور ہر گھر کی یہ زینت ہے، گھر والے لے کے جاتے ہیں، گائے بگائے، بچے بھی بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ عید آ رہی ہے، عید بچیوں کو دینی ہے، دوستوں کو دینی ہے، ہم اس لیے ادھر آئے ہیں۔ یہ بہت مزیدار ہوتی ہیں، لوگ سحری میں افطاری میں چھوٹے بڑے سب شوق سے کھاتے ہیں۔ پھیونیاں یعنی جو ہے نا یہ صحت کے لیے بہت اچھی ہیں۔ یہ دودھ میں ڈال کے اور کھائی جاتی ہیں صبح، تاکہ سحری کے وقت بھی جسم جو ہے وہ توانا رہے۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ رمضان کے دوران پھیونیوں کی مانگ میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ رمضان میں تیار ہوتی ہیں اور کافی زیادہ تیار ہوتی ہیں ڈیلی بیس میں۔ یہ 500 روپے کے جی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ لوگ عید میں تحفہ تحائف دیتے ہیں اپنے رشتہ داروں کو، بہن بھائیوں کو عیدی دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں اور لذیذہ ہوتی ہیں۔ روزانہ تقریباً کوئی 300-400 کلو تیار ہو جاتی ہے۔
ग़ज़ाई माहिरीन का कहना है फ्यूनियाँ फौरी तवानाई का जरिया तो हैं, लेकिन ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। बारीक साख और खस्तापन के बाइस फ्यूनियाँ ना सिर्फ खाने में मज़ेदार होती हैं बल्कि अफ्तारी और ईद की महफिलों का लाजमी हिस्सा भी समझी जाती हैं। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ सामिया सईद, लाहौर न्यूज़। अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी का कहना है कि हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। गिरा फरोश और मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। रमज़ान में खुसूसी प्राइस कंट्रोल मैकेनिज़्म नाफिज किया जाए। रिपोर्ट करेंगे हमजा खुर्शीद। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी ने कहा कि हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी। रमज़ान पैकेज नाकाफी और गैर मौसर है। चिकन, सब्जियों और दालों की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो चुका। महंगाई ने गरीब और मुतवस्सित तबके की कमर तोड़ दी है। हुकूमत के ये दावे कि हम रमज़ानुल मुबारक में महंगाई को भी कंट्रोल करेंगे और कीमतों को भी कंट्रोल करेंगे, ये सारे दावे जो है वो धरे के धरे रह गए हैं। फल हैं, उनकी कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। कोई गरीब आदमी अब इफ्तारी में फल ख़रीदने की पोजीशन में नहीं होता। ज़ियाउद्दीन अंसारी ने ज़िला इंतज़ामिया से मुतालबा किया कि ग्राम फरोशों, ज़ख़ीरा अंदोज़ों और मुनाफाखोरों के खिलाफ फौरी और सख्त कार्रवाई की जाए। रमज़ान में खसूसी प्राइस कंट्रोल मैकेनिज़्म नाफिज किया जाए ताकि अवाम को हकीकी रिलीफ मिल सके। हम महंगाई के खिलाफ भरपूर अवामी आवाज़ उठाते रहेंगे। हम इस मौके पर यह मुतालबा करते हैं कि हुकूमत ये जो महंगाई बड़ी शिद्दत के साथ बढ़ती चली जा रही है उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, इसको कंट्रोल करे। प्राइस कंट्रोल कमेटियां जो हैं वो अपना सही हक अदा करें। आखिरी दुकानदार पर छापे मारने की बजाय, उनको तंग करने की बजाय, उनको गिरफ्तार करने की बजाय, उन पर जुर्माने करने की बजाय जहाँ से सप्लाई हो रहा है माल वहाँ पर कंट्रोल किया जाए। अगर ये हालात इस तरह दुरुस्त न हुए तो हम इस पर रास्त इक़दाम करेंगे, हम एहतजाज भी कर सकते हैं। अमीर जमात इस्लामी लाहौर का मजीद कहना था कि महंगाई पर काबू न पाया गया तो जमात इस्लामी अवाम के साथ मिलकर भरपूर एहतजाजी तहरीक चलाएगी। कैमरामैन मोहम्मद बिलाल के साथ हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। लाहौर जनरल अस्पताल में लड़ाई झगड़े और हंगामा आराई के बढ़ते हुए वाक़यात अस्पताल इंतज़ामिया ने सिक्योरिटी के हवाले से हंगामी इक़दामात का मुतालिबा कर दिया है। MS लाहौर जनरल अस्पताल ने SP मॉडल टाउन को बाज़ाब्ता मरास्ता में भिजवाया है। ये रिपोर्ट देखिए। लाहौर जनरल अस्पताल में लड़ाई झगड़े और हंगामा आराई के बढ़ते वाक़यात। अस्पताल इंतजामिया का सिक्योरिटी के हवाले से हंगामी इक़दामात का मुतालिबा। MS जनरल अस्पताल डॉक्टर फरियाद हुसैन की जानिब से SP मॉडल टाउन को बाज़ाब्ता मरासला इरसाल। अस्पताल के अंदर और इतराफ सिक्योरिटी खदशात की निशानदही की गई है। मरासले के मुताबिक गैर मुतल्लिका अफराद और तिमाददारों के रश के बायस अमन व अमान की सूरत हाल मुतासिर हो रही है। मौजूदा हालात में सिक्योरिटी इंतजामात नाकाफी साबित हो रहे हैं। अस्पताल इंतजामिया ने पुलिस नफरी में इजाफे और 24 घंटे गश्त की बाज़ाब्ता दरख्वास्त की है। सुबह, शाम और रात की शिफ्टों में मुस्तकिल पुलिस पेट्रोलिंग की तजवीज़। अस्पताल के तरफ गैर कानूनी पार्किंग सिक्योरिटी रिस्क करार। सख्त कार्रवाई का मुतालिबा। गैर मजाज रेडी बानों और आर्जी दुकानदारों की फौरी बेदखली की भी सिफारिश की गई है। जरा के मुताबिक मरासले की कॉपी IG पंजाब, DIG ऑपरेशंस और दीगर मुतल्लिका हुकाम को भी अरसाल कर दी गई है। MS जनरल अस्पताल डॉक्टर फरियाद हुसैन ने खबरदार किया है कि सूरत हाल पर फौरी काबू न पाया गया तो मरीजों और अमले को संगीन खतरात लाहक हो सकते हैं। महफूज माहौल की फराहमी सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। सूबाई दार हुकूमत में महंगाई माफिया का राज बरकरार है। अवाम खवार हो रहे हैं। मुर्गी के गोश्त की फ़ी किलो कीमत 461 रुपये पर बरकरार है। 5 अंडों की फ़ी दर्जन कीमत 236 रुपये मुकर्रर। होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 6960 रुपये में दस्तयाब है। सूबाई दार हुकूमत में महंगाई माफिया का राज बरकरार है। अवाम खवार हो रहे हैं, जबकि मुर्गी के गोश्त की फ़ी किलो कीमत 461 रुपये पर बरकरार है। फार्मी अंडों की फ़ी दर्जन कीमत 236 रुपये मुकर्रर है। होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 6960 रुपये में दस्तयाब है। पोल्ट्री मसनूआत की कीमतों में आए रोज़ इजाफा जारी है, जबकि आपको बताएं कि आज चिकन की कीमत में कोई रद्दोबदल नहीं हुआ और फ़ी किलो कीमत 461 रुपये पर ही बरकरार है। फार्मी अंडों की फ़ी दर्जन कीमत 236 रुपये मुकर्रर है। होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 6960 रुपये में बेची जा रही है। महंगाई माफिया का राज बरकरार है और आपको बताएं कि जिसके बायस अवाम खवार हो रहे हैं। मुर्गी के गोश्त की फ़ी किलो कीमत 461 रुपये पर ही बरकरार है। आपको बताएं कि पोल्ट्री मसनूआत की कीमतों में आज कोई रद्दोबदल नहीं हुआ और फ़ी दर्जन अंडों की कीमत भी 236 रुपये पर ही बरकरार है। होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 6960 रुपये में दस्तयाब है।
सूबाई दारुल-हुकूमत में महंगाई माफिया का राज बरकरार है। मुर्गी गोश्त की फी किलो कीमत 461 रुपये पर बरकरार है। फार्म मीटों की फी दर्जन कीमत 236 रुपये मुकर्रर। होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 6,960 रुपये में बेची जा रही है। बागों के शहर लाहौर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होने लगा है। शहर का कम से कम टेम्परेचर 15 तक जाने का इम्कान है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 29 तक भी जा सकता है। और आपको बताएं कि शहर का कम से कम टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शहर में बारिश बरसने का कोई इम्कान नहीं है। इस हवाले से मुझसे जान लेते हैं सैन अली से। सैन, बताइए। जी बिल्कुल, बागों का शहर लाहौर का मौसम जो है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर जो है वो तब्दील हो चुका है, जबकि जो दर्जा हरारत है उसमें इजाफ़ा होता चला जा रहा है। लाहौर के दर्जा हरारत में जो है वो अब दिन ब दिन जो है वो इजाफ़ा हो रहा है। अगर मैं अदाद शुमार की बात करता चलूँ तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शहर लाहौर का कम से कम दर्जा 15 डिग्री, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 29 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। जबकि इस वक्त भी लाहौर का जो दर्जा हरारत है वो 16 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। हवा में जो नमी का तनासुब है वो 80% तक रिकॉर्ड किया गया, जबकि दूसरी तरफ लाहौर में जो है वो 5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवा भी चल रही है। जबकि महकमे मौसमियात की जानिब से जो है वो ताहाल कोई बारिश की पेशन कोई जो है वो नहीं की गई, लेकिन जो लाहौर का जो दर्जा हरारत में उसमें जो है वो अब दिन ब दिन इजाफा होगा। सुबह के वक्त में हल्की और ठंडी हवा चल रही है, जिसके बायस जो हल्की जो है वो ठंडक महसूस की जा रही है। ताहम जैसे ही दोपहर का वक्त होगा, वक्त गुजरेगा, तो एक मरतबा फिर जो सूरज है वो अपनी तपिश शहरियों को जो है वो महसूस करवाएगा। जी ज़ैनरी मौसम के हवाले से बता रहे हैं, स्कूलों को ठेके पर देने के अमल का तीसरा मरहला शुरू करने का फैसला है। मज़ीद 2,735 स्कूल निजी शोबे के हवाले किए जाएंगे। पहले 2 मराहल में 10,000 निजी स्कूल इंतज़ाम में दिए जा चुके हैं। ये रिपोर्ट देखिए। महकमा स्कूल एजुकेशन का सरकारी स्कूलों को आउटसोर्स करने का तीसरा मरहला शुरू करने का फैसला। 2,735 स्कूल पब्लिक स्कूल रीऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम में शामिल किए जाएंगे। एजुकेशन हुकाम के मुताबिक इस प्रोग्राम का मकसद मयारे तालीम में बेहतरी लाना और स्कूलों में दाखिलों की शरह बढ़ाना है। पहले 2 मराहिल में 10,000 स्कूल निजी शोबे के हवाले किए जा चुके हैं। अब मजीद हजारों स्कूल इस प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे, जिनमें पसमानदा इलाकों के तालीमी इदारे भी शामिल हैं। निजी शोबे, NGOs और एड टेक इदारों से दरखास्तें तलब कर ली गई हैं। दरखास्त जमा करवाने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2026 मुकर्रर। मुंतखब पार्टनर्स 1 अप्रैल से स्कूलों का इंतजाम संभाल लेंगे। महकमा स्कूल एजुकेशन के मुताबिक तलबा को मुफ्त और मयारी तालीम की सहूलत जारी रहेगी और असातिज़ा के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ भी यकीनी बनाया जाएगा। ताहम इस फैसले पर असातिज़ा और अवामी हलकों की जानिब से मिला जुला रद्द अमल सामने आ रहा है। कुछ हलके इसे तालीमी बेहतरी की जानिब कदम करार दे रहे हैं, तो कुछ इसे सरकारी निज़ाम तालीम को कमजोर करने के मुतरादिफ समझते हैं।